In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. We sing praise. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of love shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the Lamb of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. For all the earth, no limit to your love. You made us to know you. Let the earth believe your Spirit near. Your power lives in us. You made us to know you. Let the earth, for all the earth, you took the burden to lead us on through the uncertain. If all the earth is where you call us, then we will run into your
for all the earth. You took the burden to lead us on through the uncertain. If all the earth is where you call us, then we will run. Come on, into your promise for all the earth. We risk the ocean to reach the lost, to heal the broken. Let all the earth find this is freedom to know your love. We declare to know you, Jesus, for all the earth. No limit to your love. You made us to know you. Let the earth believe your spirit near. Your power lives in us. You made us to know you. Let the earth हे देयर चर्च, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का आज की सुबह में, आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना से सभा का आरंभ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। आपने हम सभी को इकट्ठा लाया आपके वचन से सीखने के लिए, आपके वचन में बढ़ने के लिए। प्रभु, आगे का सारा समय हम आपके हाथों में रहते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आइए हमारी अगुवाई कीजिए, हमें सिखाइए और हमें आत्मिक रूप में परिपूर्ण कीजिए। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को करते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, 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 आमेन। ब्यूटीफुल। तो जैसे आप सभी ने एक वीडियो देखा, अंग्रेज़ी में वहाँ पर लिखा था फॉलिंग वॉल्स। उसका हिंदी में उसका अनुवाद इस प्रकार है, गिरती हुई दीवारें। हम सबको पता है कि हम यरीहो के दीवारों के बारे में बात कर रहे हैं, आमीन। परंतु वो दीवारें जो हैं वो गिरने के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, आमीन। वाह। सो इस बात को तो समझ लीजिएगा। पहली बात कि जो वायदे का भूमि था, ठीक है, उसको पाने के पहले इज़राइलियों को इन दीवारों का सामना करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन दीवारों के भीतर, इन दीवारों के अंदर दूसरी ओर उनका वायदे का भूमि था, जो आगे जाके और भी बड़ा हुआ। पर अभी के लिए इतना जानते हैं कि इन दीवारों के आगे जो है, अंदर के भाग में जो है, उनका वायदे का भूमि था। पर उनको उस वायदे के भूमि में प्रवेश करने के लिए पहले उन दीवारों का सामना करना ज़रूरी था, आमीन। हमारे जीवनों में भी अगर हमारे सामने अगर कोई वायदे का स्थान परमेश्वर ने रखा है, वायदे की भूमि जो हम हर किसी के जीवनों में परमेश्वर ने इस भूमि को रखा हुआ है, तो इस भूमि में प्रवेश करने के पहले हमें पहले तो जंगल में से गुजरना पड़ता है, जिसे हम अंग्रेज़ी में विल्डरनेस कहते हैं, राइट। उस जंगल से गुजर कर आपको इन दीवारों का सामना करना पड़ता है।
ओके, इन दीवारों का सामना जब आप करोगे, ये दीवारें जब गिर जाएंगी, तब आप आपके वायदे के भूमि में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। तो हम उसी के बारे में कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन हम इसको कुछ हिस्सों में बांटे हैं ताकि हम पूरा महीना इन दीवारों के बारे में सीखने वाले हैं। आमीन। तो अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, यहोशू की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां वचन। ओके, जाशुआ चैप्टर 5 एंड वर्स 13। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा और हिंदी में और अंग्रेज़ी में अनुवाद जो वचन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगे। आमीन। सो जाशुआ 5:13, यहोशू 5:13 कहता है, एंड इट केम टू पास व्हेन जाशुआ वाज बाय जेरिको that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. Wow. तो यहाँ पर वचन कहता है, and it came to pass when Joshua was by Jericho. यहोशू जो है वो इस समय उस उन यरीहो के दीवारों की ओर खड़ा था। आमीन। यानी कि वो एक ऐसे चीज़ के सामने खड़ा था जिसका उसे सामना करना था। अगर वो उस चीज़ का सामना नहीं करता है तो उसके परे जो वायदे का भूमि है वो उसको कभी मिलेगा नहीं। तो उसको पार करना, उस दीवारों को पार करना बहुत ज़रूरी है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, उसे उन दीवारों को गिरा कर उन पर मात करना बहुत ज़रूरी था। वाह। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बाइबल सेज, एंड इट केम टू पास व्हेन जोशुआ वाज बाय जेरिको दैट ही लिफ्टेड अप हिज आईज एंड लुक्ड। जब आप आपके समस्या के सामने खड़े होते हो, इस समय इस पाठ में, इस पद में, जो यरीहो की जो दीवारें थी यहोशू के लिए, वो एक समस्या का कारण थी। क्यों पता है? अगर आपको ना पता हो कि वो दीवारें जो है वो क्यों बांधी गई थी, क्यों उन्हें बनाया गया था, तो वो इसलिए ताकि उन्हें पार कर कर कोई अंदर आकर लोगों पर हमला ना कर सके, जो अंदर निवासी हैं उनको तकलीफ ना पहुंचा सके। इस उद्देश्य से उन दीवारों को इस तरीके से, इस रीति में बांधा गया था। उसके पीछे ये कारण था। ओके, तो फिलहाल अगर आपको आपके शत्रु के ऊपर मात करनी है तो आपको तो पहले उसकी ढाल को गिराना है। आई गेस अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि तलवार से शायद वो सिर्फ आपको घाव पहुंचा सके, परंतु उसका जो ढाल है वो उस ढाल से वो खुद को बचा सकता है। राइट? तो आपको पहले उसके ढाल को नष्ट करना है। आई गेस अंडरस्टैंडिंग? मैं आशा रखता हूँ आप समझ रहे हो। उसी प्रकार यहोशू को पहले तो इन दीवारों को नष्ट करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य हो चुका था। अगर वो नहीं हो पा रहा तो वो अंदर के लोगों तक नहीं पहुंच पाते उस जगह को हासिल करने के लिए। तो सबसे पहला लक्ष्य अगर यहोशू के नज़र में कुछ था तो वो दीवारें। और जैसे ही वो अपने उस चुनौती के सामने खड़ा होता है और अपनी नज़रों को उठाता है, एक बात याद रखिएगा, जब आप आपके समस्या के सामने खड़े होते हो, अपनी नज़रों को उठाना भूलना नहीं है आपको। किसकी ओर उठाना है? लोगों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर उठाना है। बाइबल क्लियरली सेज, देन ही लिफ्टेड अप हिज आईज, उसने अपनी आँखों को ऊपर की ओर जो है, अपनी आँखों को, अपने नज़र को उसने ऊपर की ओर ताका। क्यों पता है? हमारा सहारा ऊपर से आता है, हमारा बल स्वर्ग से आता है, और वो कुछ और नहीं है, वो प्रभु खुद है। हालेलुया। लोगों के पास प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने के लिए मत जाओ। क्यों पता है? सल्यूशन आपको मिलना नहीं है, सल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। और अगर आपको पता ना हो तो यहाँ पर यहोशू का और यीशु मसीह का मुलाकात होता है। हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए बड़ा ही आश्चर्य का बात होगा कि अरे पास्टर ने ये क्या बोल दिया। पढ़ेंगे आगे वचन में, ठीक है? द बाइबल सेज,
हम शुरुआत से पढ़ेंगे. एंड इट केम टू पास व्हेन जॉशुआ वाज बाय जेरिको, वो यरीहो के दीवारों के पास था, एरियो के पास था, दैट ही लिफ्टेड अप हिज आईज एंड लुक्ड एंड बिहोल्ड देयर स्टूड अ मैन ओवर अगेंस्ट हिम विथ हिज स्वॉर्ड ड्रॉन इन हिज हैंड. उसने एक आदमी को देखा, जो उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक तलवार थी. एंड जॉशुआ वेंट अनटू हिम एंड सेड अनटू हिम, आर्ट दाउ फॉर अस और फॉर आर एडवर्सरीज. क्या यीशु ने उसको पूछा कि क्या तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, है ना. यीशु ने उस आदमी के हाथों में तलवार को देखा. इस कारणवश यीशु ने पूछा कि तुम हमारे साथ हो, यानी कि तुम हमारे साथ लड़ने वाले हो या तुम हमारे खिलाफ लड़ने वाले हो, या तुम शत्रु के साइड से हो, है ना. आगे लिखा है, एंड ही सेड, nay, but as captain of the host of the Lord I now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship and said to him, what saith my Lord unto his servant. वहाँ पर उस आदमी ने कहा कि मैं किसी की ओर से नहीं हूँ, है ना. कई बार जब हमारे सामने वो यरीहो की जो दीवारें खड़ी होती है ना, हमको लगता है कि क्या ये जो यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर जो है, क्या वो हमारे खिलाफ लड़ रहा है, वो हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है. हम प्रभु को पहचानने में गलती कर देते हैं. हैव यू गाइस रियलाइज दैट? आई हैव रियलाइज दैट. मैंने इस बात को थोड़ा गौर किया और मुझे इस बात का एहसास हुआ. लेकिन प्रभु वहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं तो परमेश्वर की सेना का सेनापति हूँ. मुझे हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा होगा वो हिंदी ट्रांसलेशन है. मेरे पास फिलहाल हिंदी नहीं है, तो मैं मेरा सर्वोत्तम देने का कोशिश कर रहा हूँ अनुवाद के साथ. तो अगर कुछ भूल चूक के साथ गलत अनुवाद होगा तो कृपया करके क्षमा करिएगा. बट एज कैप्टन ऑफ द होस्ट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की सेना का सेनापति हूँ. मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, ना तुम्हारे साथ लड़ रहा हूँ ना तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा हूँ. अंडरस्टैंड दिस. क्यों पता है? आप लोग बोलोगे कि लेकिन पास्टर आपने तो सिखाया था कि युद्ध जो है वो परमेश्वर का है, हमारा युद्ध परमेश्वर खुद लड़ता है. जी हाँ, लेकिन बात वही है, वो हमारे साथ नहीं लड़ते, वो हमें बैठाते हैं, वो लड़ते हैं. वो हमारा युद्ध लड़ते हैं, वो हमारे साथ नहीं लड़ते, वो हमारा युद्ध लड़ते हैं. आमीन. एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मैन. तो कभी भी ऐसा नहीं, बहुत लोगों को लगता है कि अगर ये बीमारी मुझ पर आई है तो प्रभु ने मुझको बीमारी दी है. जो परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर खुद की जान को दिया ताकि आपको चंगाई मिल सके, पाप की क्षमा के साथ ही साथ चंगाई भी मिल सके, क्या वो खुदा आपको बीमारी दे सकता है और क्यों देगा? सोचने वाली बात है. हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ है या प्रभु मेरे खिलाफ है. मैं आपको एक अगर आपको ना पता हो तो आपको एक सुसमाचार देना चाहूँगा, एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं है, परमेश्वर आपके साथ भी नहीं है, परंतु अब यह नया नियम है, परमेश्वर आपके अंदर है, आप परमेश्वर आत्मा में हो. हालेलुया. Now the Bible says, and Joshua fell on his face to the earth. यहोशू जो है वो अपने मुख के अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर धरती पर गिरा, ज़मीन पर गिरा. एंड डिड वर्शिप, उसने आराधना की. एंड सेड अनटू हिम, व्हाट सेथ माय लॉर्ड अनटू हिज सर्वेंट. परमेश्वर अपने दास से क्या कहता है, यहोशू ने ये पूछा. एंड द कैप्टन ऑफ द लॉर्ड्स होस्ट सेड अनटू जोशुआ, लूज दाई शू फ्रॉम ऑफ दाई फुट. अपने पैरों से उन जूतों को उतार, अपने उस जूतों के बंद को खोल. फॉर द प्लेस वेयर ऑन दाउ स्टैंडस्ट इज होली, क्योंकि तू जिस भूमि पर खड़ा है वे पवित्र है. ओके. एंड जोशुआ डिड सो, और यहोशू ने वैसा ही किया. अब आप बोलोगे इसमें यीशु मसीह कैसे, क्या आप बोल सकते हो ऐसा? यीशु मसीह ही है. क्यों पता है? आप पूरे पवित्र शास्त्र को खोल कर देखिएगा. जब भी मनुष्य का गलती हुआ है और उसने स्वर्ग दूत को परमेश्वर समझकर आराधना करने की कोशिश करी है,
स्वर्गदूतों ने हमेशा रोका है। एक हद तक एक स्वर्गदूत ने इस वाक्य को भी कहा कि मैं तो तेरी तरह ही एक सेवक हूं, तो मेरी आराधना मत कर। पता है आपको? लेकिन यहां पर जब वचन साफ साफ कहता है, यीशु ने अपने चेहरे पर गिरकर जमीन के ऊपर उस मनुष्य उस आदमी की आराधना की करी। बहुत स्पेसिफिकली लिखा है, वर्शिप्ड है, आराधना करी। उस आदमी ने उस समय यीशु को मना नहीं किया, उस आराधना का स्वीकार हुआ उस जगह पर। आपको क्या लगता है इससे क्या साबित होता है? पुराने नियम में भी हम यीशु मसीह को बहुत बार देख पाते हैं। इट्स जस्ट दैट हम उनको समझ और पहचान नहीं पाते कि ये यीशु मसीह है। हालेलुया। अपने पवित्र शास्त्र को अच्छे से पढ़े, और यीशु ने वैसे ही किया, अपने जूते को बंद को खोला। इट इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर यहोशू उस समय अपनी आंखों को, अपनी नज़रों को ऊपर की ओर उठाकर नहीं देखा होता, वो शायद ये मुलाकात को नहीं पाता। और जब उसने वो मुलाकात को पाया, वो किसी ऐरे गहरे व्यक्ति के साथ उसने मुलाकात नहीं करी, उसने जिंदा परमेश्वर की मुलाकात ली उस समय। आई वॉन्ट यू ऑल टू नो, कैन आई टेल यू समथिंग? जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, does not matter how tall the walls of Jericho are in your life. फर्क नहीं पड़ता है कि यरीहो की जो दीवारें आपके जीवन में है, फिर वो आर्थिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आत्मिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है। मुझे नहीं पता कितनी है, कैसी है, बड़ी है, चौड़ी है, मोटी है, पता नहीं मुझे। पर इतना पता है कि जिस क्षण आप उसके सामने खड़े रहते हो ना, आपका खुदा आपके लिए उतर आता है। आई डोंट नो व्हाई, आई वांट टू एनकरेज समवन, मैं किसी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। डज नॉट मैटर हाउ ह्यूज और व्हाट काइंड ऑफ दैट वॉल इज इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन सून इन द नेम ऑफ जीसस। और जल्द ही यीशु मसीह के नाम में वो दीवार आपके जीवन से टूटकर बिखरने वाली है। हालेलुया, कैन आई गेट एन आमेन? वाह। हम अगले अध्याय की ओर मुड़ेंगे, उसका 6वां अध्याय, और उसका पहले आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, हिंदी में आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, आशा रखता हूँ। नाउ जेरिको वॉज स्ट्रेटली शट अप बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। ओके, नन वेंट आउट एंड नन केम इन. And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho. Wow. यानी कि यरीहो जो है वो पूरे रीति से बंद किया गया था। अभी लॉकडाउन का समय है ना। पिछले साल हमने बहुत सारे कर्फ्यू देखे, बहुत सारे लॉकडाउन्स देखे, है ना, कोविड के लिए, कोविड की वजह से, कोरोना के कारण। हमने वहाँ पर एक चीज़ देखी कि हम सबको एक जगह पर हमारे घर में ही आइसोलेट कर दिया था, है ना। घर के बाहर निकलना नहीं है। पहला लॉकडाउन जब भी था, है ना, घर के बाहर निकलना ही नहीं है। सब्जी भी लाने जाना है तो पता नहीं कितनी बार तो सैनिटाइज़र यूज़ कर चुके हैं हम लोग, है ना। बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था वो टाइम, रिमेंबर दैट। सो उस समय में अब हमने जिस तरीके से इन चीज़ों को देखा है, उसी तरीके से यरीहो के लोगों ने भी इन चीज़ों को देखा है। क्यों पता है? क्योंकि ये सारे के सारे डर गए थे। हाँ, आपने सही सुना। किन लोगों से? ऐसे लोगों से जिनका कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ एक पहचान है, और वह है यहोवा परमेश्वर। फिर एक बार दोहराऊंगा मैं। अभी हमारे पास दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म की प्रजातियां हैं। एक तरफ है इजरायली लोग, ओके, जिनके पास खुद का ठिकाना नहीं है, इतने सालों से भटक ही रहे, अभी भी भटक रहे, खुद का कुछ ठिकाना नहीं है, अभी भी भटक ही रहे। दूसरे साइड पर यरीहो है, जहाँ पर लोग रहते हैं, इमारतें हैं, घर है, सिपाही है, दीवारें हैं, सब कुछ है, लेकिन ये लोग इजराइलियों से डरे हुए हैं।
ऐसे लोगों से डरे हुए हैं जिनका खुद का कुछ ठिकाना नहीं है। और इन लोगों का एक पहचान है, वो है कि हमारे दीवारें इतनी हट्टी कट्टी है, इतनी ऊंची है, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है। ये उनका पहचान। और इस एक दूसरी तरफ इजराइलियों का एक ही पहचान, यहोवा परमेश्वर। और कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है। और ये लोग जो इतने हथियारों के साथ, तलवारों के साथ, पता नहीं क्या क्या के साथ तैयार है, ऐसे लोगों से डर रहे हैं जिनका खुद का कुछ ठिकाना नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर यहोवा के बारे में बहुत बातों को सुना था, बहुत बातों को, और वो इस कारण डर गए थे। और उनको पता चल चुका था कि ये लोग इस तरफ आ रहे हैं। इस कारण उन्होंने प्रबंध इतने अनुशासित कर दिए, कोई भी व्यक्ति बाहर का अंदर और अंदर का बाहर नहीं कर सकता। तो उनका भी उधर लॉकडाउन हो गया था, एक तरीके से आप बोल सकते हो, यू नो। एंड द बाइबल सेज, एंड द लॉर्ड सेड unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. You know, क्या मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ? Before, you know, I love to say this, you know, I love to say this. Before God sends you somewhere, He prepares that somewhere before time. I'll repeat it again. Before God sends you somewhere, He prepares that somewhere before time. अगर परमेश्वर आपको किसी स्थान पर जाने के लिए बोल रहे हैं, किसी जगह पर आपको भेज रहे हैं, तो वो जगह पहले ही वो तैयार करके सब सही करके रखते हैं ताकि आप वहां पर प्रवेश कर सको। वाह! क्यों पता है? ना इन्होंने अब तक दीवारों को तोड़ा था, है ना इन्होंने दीवारों को एक पत्थर भी उठा के मारा नहीं था यार, तोड़ना तो दूर की बात है ना। कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? I have given the land into thine hands. क्या? See, I have given into thine hands Jericho. मैंने यरीहो को तेरे हाथों में सौंप दिया है। You know, राजा को भी और उसके बलवंत आदमियों को भी, जो सामर्थशाली, जो हट्टे कट्टे जो लोग हैं, उनको भी तेरे हाथों में सौंप दिया है। यानी कि क्या? तूने इनके ऊपर प्रभुता को पा लिया है, तूने इनके ऊपर विजयता को प्राप्ति कर ली है। Can I tell you something? You actually receive your victory the day God meets you. You know, जिस दिन आप परमेश्वर को मिलते हो, उस दिन आप विजेता को प्राप्त कर लेते हो। I repeat it again. The day you meet God is the same day you receive victory. जिस दिन आप परमेश्वर से मुलाकात को पाते हो, उसी दिन आप विजेता को भी पाते हो। You know why? Do you know why? क्योंकि वो जंग अभी आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। It's so beautiful. This is so beautiful. You know, it's so beautiful. Wow. आगे लिखा है, and ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns. And the 7th day ye shall compass the city 7 times. And the priests shall blow with the trumpets. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. थोड़ा बटोर के हिंदी में मैं इसका अनुवाद करने का कोशिश करूंगा, ठीक है? एंड ye shall compass the city
ऑल ये मैन ऑफ वॉर, जितने भी लड़ने वाले जो इज़राइल के जो सेना के जो पुरुष थे उनको आज्ञा दिया, उनको ये करने के लिए बोला प्रभु ने, वहाँ पर क्या करने के लिए बोला कि जो यरीहो है उसके इर्द गिर्द पहला दिन घूमो, है ना, एक बार। Thou shalt do 6 days, ये तुम 6 दिन करोगे। And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of rams, ऊपर लिखा कि जो याजक है 7 याजक जो है वो वाचा की संदूक के सामने 7 जो है ट्रम्पेट्स को लेके आएंगे एंड द 7th day ye shall compass the city 7 times, और 7वें दिन पर तुम यरीहो को 7 बार तुम उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाओगे, है ना। एंड द प्रीस्ट शैल ब्लो विद द ट्रम्पेट्स, और याजक जो है ट्रम्पेट्स को ब्लो करेंगे, बजाएंगे, शहनाई को बजाएंगे। एंड इट शैल कम टू पास, और ऐसा होगा दैट व्हेन दे मेक अ लॉन्ग ब्लास्ट विद द रैम्स हॉर्न, और जब वो उस हॉर्न के साथ यानी कि उस ट्रम्पेट के साथ एक ज़ोरदार आवाज़ को करेंगे, एक लंबा आवाज़, एंड इन ऑल द पीपल शैल शाउट विद अ ग्रेट शाउट, सारे लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाएंगे, बहुत ज़ोर से चिल्लाएंगे, ओके। एंड द वॉल ऑफ द सिटी शैल फॉल डाउन फ्लैट, और जो दीवारें हैं वो ज़मीन पर गिर कर बिखर जाएंगी। वाह, दिस इज सो प्रॉफिटिक। आई लव यू लॉर्ड। कैन आई टेल यू समथिंग? क्या मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ? आपको अगर आपके यरीहो के दीवारों को गिराना है ना, यीशु मसीह से जाके ब्लूप्रिंट ले लो। अगर आपको आपके यरीहो के दीवारों को गिराना है तो यीशु मसीह के पास जाकर अपने ब्लूप्रिंट को ले लो, अपने बुद्धि पर मत करना। क्यों पता है? आपका तरीका नैसर्गिक है, उसका तरीका अलौकिक है। हालेलुया। जो परमेश्वर स्वर्ग में है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से नीचे उतर कर यीशु को ये ब्लूप्रिंट देने के लिए आता है, ये प्लान देने के लिए आता है, सूचना कि ऐसा करो। और परमेश्वर कितना स्पेसिफिक है इस बात में देखिए। 7 याजक, एक पहले दिन में 1 बार, 7वें दिन में 7 बार, आंकड़ों के साथ। परमेश्वर बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है, so important to understand, the problem with us is कई लोग यरीहो के दीवार के सामने खड़े होकर प्रभु की ओर देखते ही नहीं है, ठीक है, चलो वो तो कुछ लोग हो गए। कुछ लोग ऐसे वो यरीहो के दीवार की ओर देखते हैं, मतलब पहले किस्म के लोग देखते हैं, डरते हैं, बोलते हैं अरे भैया साहब ये क्या है, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे यार, ये तो बड़ा ही खराब है, बहुत ही बड़ा है, हमारे लोग इतने, ये लोग इतने, पूरा अविश्वास में चले जाते हैं। हमारे माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, सारे के सारे लोग नकारात्मकता में सोचते हैं, अरे ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, प्रभु तो कुछ भी बोलते हैं, शायद ये मेरा सोच विचार था। हम भूल जाते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की मेज़बानी करते हैं जो असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हैं। हम दीवार की लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई को नाप कर, देख कर, तोल कर हम लौट आते हैं और बोलते हैं प्रभु ये नहीं हो सकता। इसके लिए यीशु मसीह ने नए नियम में सुसमाचार में कहा है कि हे अल्प विश्वासी, ये ऑफ लिटिल फेथ, अविश्वासी, उसका कोई अलग शब्दों में उसे अविश्वासी बोले जाते हैं, जिसके पास विश्वास नहीं है। लेट्स नॉट बी दोज पीपल, क्यों ना हम ऐसे लोग ना बने, राइट। दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो ऊपर अपनी आंखों को उठाते भी हैं, यीशु मसीह के आवाज़ को भी सुनते हैं, व्हाट आई मीन टू से, उनके प्लान को पवित्र आत्मा प्रकट भी करते हैं, समझ भी पाते हैं क्या है क्या नहीं, कैसा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर ये जो दूसरे किस्म के लोग होते हैं ना, वो आज्ञाकारिता में पीछे गिर जाते हैं, सब पा लेते हैं, लेकिन जितना बोला गया उतना करते ही नहीं है, तो ब्लूप्रिंट पाकर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ये हो गया दूसरे किस्म के लोग, और तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो आज्ञाकारी, जो पहले तो नज़रों को उठाते हैं, ब्लूप्रिंट को पाते हैं, आज्ञाकारिता में चलते भी हैं,
लेकिन बीच में ही कुछ उल्टा कर बैठते हैं, जो बोला गया उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा कर बैठते हैं, और वो अनाज्ञाकारिकता में ही गिना जाता है। यू नो, लेट्स नॉट बी दोज पीपल। क्यों ना ऐसे लोग ना बने। हमें हर छोटी से बड़ी चीज़ का एग्जैक्ट उसी तरीके से आज्ञाकारिकता में चलना है, उन बातों को मानना है जिस तरीके से वो हमें बताई गई, प्रकट करी गई। आमीन। यहाँ पर यहोशुआ ने वही किया। हम आगे शायद इस बात को हम अगले रविवार में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से आगे क्या हुआ, क्योंकि हम ये पूरा महीना जो है ना, सितंबर का जो पूरा महीना है, हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, है ना। एक नया प्रकाशन पवित्र आत्मा हमें दे रहे हैं। आमीन। तो अब मैं आपको थोड़ा जो है, हम जो अभी हमने जो पढ़ा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या लिखा था 6:1 से, कि यरीहो पूरे तरीके से बंद था, किसी को अंदर बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं थी। और एंड द लॉर्ड सेड अनटू जोशुआ, और फिर परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मैंने यरीहो को तेरे हाथों में सौंप दिया है। कैन आई टेल यू समथिंग, दोज वॉल्स आर नॉट स्टॉपिंग यू टू हैव द प्रॉमिस्ड लैंड इन योर हैंड्स। वो जो दीवारें हैं जो सिर्फ आपको शारीरिक रूप में आपको दिख रही है, जो रुकावट के लिए लगाई गई है, आत्मिक रूप ने उसके भीतर की, उसके दूसरी ओर की जो ज़मीन है, जो आपके वायदे की हक की है, परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, परमेश्वर ने उस भूमि को आपके हाथों में लाकर ऑलरेडी रख दिया है। आप बोलोगे कैसे? विश्वास से। अगर यहोशू ने इस पद में विश्वास के साथ इस प्लान को फॉलो नहीं किया होता ना, हम कुछ और कहानी पढ़ रहे होते हैं आज, पता है आपको। परंतु यहोशू ने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने आज्ञाकारिकता निभाई, वो विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। वो क्या रहा? विश्वास योग्य रहा। और वचन कहता है यहोशू ने वैसे ही किया, है ना। हम आने वाले रविवार में सीखेंगे कि एग्जैक्टली आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, बारीक बारीक चीज़ों को जानेंगे। लेकिन आज के लिए मैं आपको इस एक चीज़ के साथ प्रोत्साहित करना चाहूँगा, और वो है अपने दीवारों को देखकर डरना बंद करिए। क्यों पता है? उसके भीतर की जो भूमि है वो आपकी है, उस पर कोई हक नहीं जमा सकता है जब तक आप जाकर उसे हासिल करने की प्रभु के इच्छा अनुसार प्रयास ना करें। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और ले जाएगा, है ना। तो इसके लिए देर मत करिएगा, जाओ और उस वायदे की भूमि को हासिल कर लो। हो सकता है कि बड़े बड़े प्रॉफिट ने आपके ऊपर, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने आकर, नबियों ने आकर आपके ऊपर नबूवत का शब्द कहा होगा, भविष्यवाणी की होगी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है भैया, अच्छी बात है, लेकिन आप में से कितनों ने उस नबूवत के शब्द को विश्वास से स्वीकारा है? 10 में से 2 लोगों का हाथ ऊपर उठेगा। बहुत लोगों ने सुना, अपने रिश्तेदारों को भी जाके बोला, अरे इस पास्टर ने मेरे पे ये बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। लेकिन उस चीज़ को ग्रहण करना एक कुछ और अलग बात होती है। There is something when you receive it by faith. विश्वास से उस चीज़ को ग्रहण करना कुछ अलग बात होती है, और जो ज़रूरी है। If you don't receive it by faith, you lose it by sight. अगर आप उसको विश्वास से ग्रहण नहीं करते हो ना, आप आपकी नज़रों से उन चीज़ों को देखकर आप गवा देते हो, क्योंकि अविश्वास आता है। हालेलुया। वो दीवारें गिरने वाली है। आमीन। वो भूमि आपको दी गई है। आमीन। प्रभु आपसे आज बात करेंगे। हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। जल्दी से अपनी आंखों को बंद करेंगे।
आप जहाँ कहीं भी, फ़र्क नहीं पड़ता आप अभी देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, या फिर आप 10 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो, परमेश्वर फिर भी काम करेंगे, अभिषेक वही है। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इन सारे अद्भुत लोगों को आपके हाथों में लेता हूँ पिता। जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, मैं इन सभी को आपके हाथों में लेता हूं पिता परमेश्वर। जो यरीहो की जो दीवार है जो इनको रुकाए रखी है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप उनसे मिलिए, आप उनसे बात कीजिए, आप उन्हें उस प्लान को समझाइएगा कि वो किस तरीके से उस दीवार को आप उनके द्वारा गिराना चाहते हो। उनको समझने के लिए मदद करिएगा कि युद्ध उनका नहीं है वरन प्रभु आपका है। आज्ञा देने वाले और लड़ने वाले आप हो, सिर्फ पालन करने वाले और लाभ उठाने वाले हम हैं। प्रभु मैं उन सारे लोगों को आपके हाथों में रहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, उनके विश्वास को बढ़ाएं पवित्र आत्मा। मैं ऐसा आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूँ प्रभु। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में रहते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को करते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ, सभी ने मिलकर कहा आमेन, 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 आमेन। वाह, हम भेंट की ओर जाने वाले हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आज का वचन आप सभी के लिए आशीषित होगा। मेरे लिए बहुत आशीषित रहा है जैसे मैं प्रचार कर रहा था। तो हम भेंट की समय की ओर जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम अनाउंसमेंट्स लेंगे और फिर आने वाली भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर जो डिटेल्स है आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेंगी। ओके, तो अनाउंसमेंट्स इस कदर है कि पहली तो बात कि हम जो है कल औरंगाबाद के शहर में जाकर आए थे। यस, मैंने कहा माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो कल जो है शनिवार का दिन हम औरंगाबाद के इस शहर में थे और 7 माउंटेन मिनिस्ट्रीज़ करके एक सेवकाई है वहाँ पर। सिस्टर ग्रेस डैनियल बोलकर एक पासबान है वहाँ पर, उन्होंने हमें आमंत्रित करा था। बहुत ही अद्भुत रूप में परमेश्वर उनकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। औरंगाबाद के शहर में नया कलीसिया है और मुझे मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर प्रचार कर पाया। बहुत ही अद्भुत रूप में और बहुत ही सुंदर रीति में परमेश्वर ने वहाँ पर कार्य किया। बहुत जीवनों को परमेश्वर ने स्पर्श किया। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आने वाले समय में भी ऐसे ही अद्भुत कामों को करेंगे और आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके हमें प्रार्थना में बनाए रखें, तो क्योंकि और भी बहुत सारे बहुत सारे अद्भुत काम होने बाकी हैं। आपको उन सभी के बारे में सूचनाएं दी जाएंगी टाइम टू टाइम। अगर आप हमारे मंथली पार्टनर बनना चाहते हो, अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हो, आर्थिक रूप में हमारे साथ जुड़कर ऐसी सभाओं को खड़ा करने के लिए, मदद करने के लिए, अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हो आर्थिक रूप में और प्रार्थना के रूप में भी, तो कृपया कर हमें ईमेल करिएगा। ईमेल आपके यूट्यूब जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा है फिलहाल। ओके, अब डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप वो वहाँ पर से पा सकते हो। हमें कृपया करके ईमेल करके हमें बताएं अगर आप हमारी आर्थिक रूप में मदद करना चाहते हैं जुड़कर पार्टनर्स के नाते। ओके, अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो हम आपसे बात करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी, ताकि हमें भी एक मदद मिले परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए। आमीन। और हमें इसी तरीके की और सभाएं भी करनी है। सो हमें कृपया करके प्रार्थना में रखें। आने वाले दिन अद्भुत होने वाले हैं, अलौकिक होने वाले हैं और यीशु मसीह का सुसमाचार अद्भुत रूप में प्रचार होने वाला है। हालेलुया। और उसी के साथ साथ क्यों ना हम आने वाले भेंट के लिए भी प्रार्थना करें और डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर दी जाएंगी। क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आने वाले भेंट के लिए, जो लोग आपके भवन में पिता परमेश्वर बोने वाले हैं, इन सारे लोगों को हम आपके हाथों में रहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इनके आर्थिक क्षेत्र को आपके संपूर्ण समर्पण में अर्पित करते हैं प्रभु। इनके दशमांश को, इनके भेंट को प्रभु, ये सारा का सारा जो आमदनी है प्रभु, ये जो भी है, मैं इस सारी भेंट को इकट्ठा सिर्फ आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए समर्पित करता हूँ प्रभु। किसी मनुष्य के लिए नहीं, वरन केवल आपके राज्य के काम के लिए।
जिन जिन हाथों ने बोया आप उनको आशीषित करें प्रभु, और जो हाथ चाह कर भी बो नहीं पाए आप उन्हें अधिक ज़्यादा आशीषित करें, ताकि वो आपका अपने धन संपत्ति के साथ एक हर्षित हृदय के साथ आदर करने पाए। धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को करते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पुत्र। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन 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 आमेन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो कृपया करके यूट्यूब चैनल जो है आपको फ़िलहाल जिसके ऊपर आप देख रहे हो, या गूगल मीट के ऊपर देख रहे हो, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना, ताकि आप हमेशा हर रविवार जब भी सभा शुरू होता है आपके फ़ोन के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा ये कहकर कि सभा शुरू हो चुकी है। आमीन। तो कृपया करके उसके ऊपर क्लिक करिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपको हमारे साथ एक पर्सनल लेवल पर जुड़ना है, हमारे साथ बात करनी है, या आपकी प्रार्थना निवेदन जो है हम तक पहुंचाना है, या किसी भी रूप में आप हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप कृपया करके डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे के सारे ईमेल आईडी और सोशल मीडिया के सारे लिंक्स हैं, उसके ऊपर क्लिक करके आप हम तक पहुँच सकते हो। आमीन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप जुड़े इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाला सप्ताह आप सभी के लिए आशीषित रहे। सबको जय मसीह की।